सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अर्नव एंड आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है मेरे सारे एस्पायरिंग पायलट्स के लिए। तो इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग योर एविएशन करियर। So the first thing that you have to keep in mind is your finances and the costing that you have to bear while choosing this career. Obviously भाई तुम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए या तुम्हारी हॉबी होगी तभी तुमने ये वाला करियर डिसाइड किया है कि तुम्हें पायलट ही बनना है। डिसाइड तो कर लिया बट तुम्हें ये नहीं पता कि भाई तुम्हारे पैसे कितने लगने हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड बी वेरी क्लियर दैट पायलट बन रहे हो तो भाई पैसे बहुत लगने हैं and this is the harsh reality. Well, I give you some of the examples. Like if you choose South Africa for your pilot training, then it will cost you around 50 to 55 lakhs to just complete your CPL from South Africa. Then after that, you can take 4 to 5 lakhs to do your conversion flying. So it will cost you around 60 lakhs to get your Indian commercial pilot license. Then after that, you have to get into an airline. So before to get into an airline, you have to do your type rating. Then it will cost you around 20 to 25 lakhs to do your type rating. So 60 lakhs plus 20 to 25 lakhs, it will cost you around 80 to 85 lakhs. Now you are a type rated pilot, you will get into an airline, you have cleared your job interview and all that. There will be a line training and the airline demands some money to get your line training done. So it can cost you around 10 to 15 lakhs. Then 85 lakhs plus 10 lakhs will be around 90 to 95 lakhs. So if you are choosing a conventional pathway, then it will cost you around 90 to 95 lakhs. And if you are choosing a cadet pilot program, then it will cost you around 1 crore to 1.5 crores. Like depending upon various cadet pilot program, Air India and Indigo both are offering their cadet pilot programs and average cost is around 1.2 crores. And they are increasing the cost every year. It can cost you as much as you can. So the first thing is that you have to be very well prepared with the finances कि हाँ भाई मेरे इतने पैसे लगने हैं तो मैं स्टार्टिंग से ही क्लियर हूँ कि मेरे इतने पैसे लगेंगे. आफ्टर दैट द सेकेंड थिंग, अब तुम्हारी हॉबी होगी, तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हें पायलट बनना है. ऑल्सो हाँ भाई तुमने फंडिंग का भी जुगाड़ कर लिया कि हाँ भाई फंड्स भी हो जाएंगे, सब मैनेज हो जाएगा. द सेकेंड थिंग, यू शुड बी मेडिकली फिट. मेडिकल फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा मेरे साथ हुआ था, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे पायलट बनना है. व्हेन आई वाज इन माय क्लास 11th, I did my class 2 medical, and when I was in my class 12th, before giving my boards exam, I did my class 1 medical. Before completing my class 12th, I was done with both my class 1 and class 2 medical. So now I am sure that I am medically fit. I am fit to become a pilot because initially you have to do your class 2 initial and class 1 initial, जिसमें थोड़ा सा deeply check करते हैं वो आपको सारी चीज़ें basic कैसी होती है आपकी बॉडी में, and you are perfectly fit to go. देन उसके बाद तो हर साल आपका बस क्लास 1 रिन्यू होते हैं जिसमें आपका ब्लड टेस्ट और छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, ज़्यादा टेस्ट नहीं होते. मेडिकल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैंने अपनी हाउ टू बिकम अ पायलट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था. क्लास 1 मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं, क्लास 2 मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं, तो आप देखने को वो जाके देख सकते हैं. सो नाउ वी आर डन विद 3 थिंग्स. हॉबी, पहली आपकी हॉबी है. नाउ वी आर डन विद फाइनेंसेस. नाउ यू आर ऑल्सो डन विद योर मेडिकल्स. नाउ द अदर थिंग यू हैव टू डू इज़ you have to choose a ground school and you can clear all your exams. When you're done with your exams, the theoretical part is clear in your mind that how the aircraft works and how the navigational stuff works. So it will be much easier for you in your flying school to do your flight training and to clear your exams over there. Air navigation, air regulation, aviation metrology and RTR. So I suggest that these 4 exams you should at least give if you have to do your flight training from abroad. And if you are doing your flight training from India, then you have to give 2 more exams, technical general and technical specific. क्योंकि DGC अपना लेवल अब आज की डेट में बढ़ा रहा है. लाइक आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स कि रेगुलेशंस का एग्ज़ाम बिल्कुल भी पहले क्या होता था, RK वाली में से आते थे सारे एग्जाम्स. नेविगेशन, रेगुलेशन एंड मेट्रोलॉजी तो अभी भी IC जोशी में से आ रहा है एंड ऑक्सफोर्ड में से. एंड जो रेगुलेशन और नेविगेशन का एग्ज़ाम है वो डायरेक्टली RK वाली में से अब नहीं आ रहा. रिस्क तो आई थिंक सो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. तो आई सजेस्ट अपने एग्जाम्स क्लियर करो, उसके बाद फ्लाइंग करने जाओ, आराम से कन्वर्जन कराओ. नाउ द अदर थिंग इज़ दैट यू आर डन विद योर फाइनेंसेस, यू आर डन विद योर ग्राउंड क्लासेस एंड योर एग्जाम्स. नाउ यू आर इन अ फ्लाइंग स्कूल एंड चूजिंग अ गुड फ्लाइंग स्कूल
is the best decision and is the most important decision that you have to make, because it totally depends on you and your demands and your finances also, that which flying school you have to choose. Like South Africa can cost you, as I've already told you, around 50 to 55 lakhs. In India it can cost you around 60 to 65 lakhs, and in United States of America it will cost you around 80 to 85 lakhs to just complete your CPL, and same in New Zealand, 80 to 85 lakhs. So I'll not talk about those things in this video. I'll make a separate video like how to choose a good flying school. So we'll cover that in a separate video. So for the time being, now you are in a flying school, you have to follow some set of basic rules to do your flight training. First of all, you should be very consistent with your studies. Like studies are very very important, because आप भाई flying school में आ गए हो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ flying ही करनी है. फ्लाइंग के साथ साथ आपको अपने थ्योरी एंड थ्योरेटिकल एग्जाम्स सब क्लियर करने हैं. इन साउथ अफ्रीका देयर आर 19 एग्जाम्स. फॉर PPL you have 8 exams, and for CPL you have 10 exams, and there is one exam for rating, so night rating. So in total there are 19 exams. भाई आप एक बार आप इमेजिन करो, बच्चे 19 एग्जाम्स भी दे रहे हैं और साथ साथ 200 घंटे 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग भी कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता होगा. अरे मुझे चक्कर आने लग गया. तो आपको उस चीज़ से भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट नहीं होना कि भाई ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है. नथिंग भाई, कुछ भी नहीं है. और बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा ये र्यूमर्स फैला रखे हैं भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है साउथ अफ्रीका में फ्लाइंग, बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्स हैं. अब भाई मुझे एक बात बताओ, नेविगेशन, इंडिया में आप नेविगेशन देते हो, नेविगेशन के एक एग्जाम में तीनों टॉपिक्स एक ही में कवर होते हैं. जनरल, रेडियो एंड इंस्ट्रूमेंट्स एक ही एग्जाम में आ जाता है. बस साउथ अफ्रीका में उन सब के अलग अलग एग्जाम्स है, 3 एग्जाम्स. रेडियो का अलग एग्जाम है, इंस्ट्रूमेंट का अलग है, जनरल का अलग है. तो आपको मतलब डरना नहीं है उन सब चीज़ों से. पहली बात भाई, आप आयो, सीधी बात है भाई, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपनी फ्लाइंग करनी है, दैट्स इट. आपको और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रखना. आपके पेरेंट्स आप पे पैसे खर्च कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन यू, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन यू, सो यू जस्ट हैव टू स्टडी. हाँ भाई, एंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है, एंजॉय भी करना है राजा जी, एंड साथ साथ अपनी फ्लाइंग भी करनी है. एंड यू शुड फॉलो अ प्रॉपर डिसिप्लिन. आपको प्रॉपर एक ग्रूमिंग करा के रखनी है अपनी, बिकॉज पायलट्स प्रॉपरली ग्रूम्ड होने चाहिए. दिस इज़ अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ पायलट. एंड द अदर थिंग इज़ दैट देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक. आपने ऊपर हवा में कोई मिस्टेक करी एंड देयर कैन बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दैट, सो देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक. एंड ऑल्सो एविएशन डिमांड पेशेंस, एंड आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सारे एग्जाम्स हो गए थे इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर. मैंने अपने सारे एग्जाम्स कर लिए थे. देन आफ्टर दैट मेरा नवंबर में US वीज़ा का इंटरव्यू था, रिजेक्ट हो गया. देन आफ्टर दैट मैंने अपना एक बस RTR का एग्ज़ाम दिया था फरवरी में, मेरा वो हो गया. देन मैं चाहता तो मेरी फ्लाइंग मेरी मार्च में शुरू हो सकती थी, मैं मार्च में जा सकता था, लेकिन अब भाई जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है. मैं फरवरी का एग्ज़ाम क्लियर करके बैठा हूँ, एंड आई एम स्टार्टिंग माई फ्लाइट ट्रेनिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई. मतलब कितना वो होता है कि भाई मैंने लास्ट ईयर अपने सितंबर अक्टूबर में सारे एग्ज़ाम्स निकाल लिए थे, एंड जस्ट उसके बाद बस मैं बैठा ही हूँ घर पे. तो मे बी वो कुछ अच्छे रीज़न के लिए ही हुआ होगा, क्योंकि मैंने फ्लाइंग स्कूल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी. कि पहले मेरा US का कंफर्म था कि मुझे US ही जाना है, बट जैसे ही मेरा US का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, आई वॉज लाइक वेरी डिप्रेस्ड एंड आई वॉज वेरी सैड फॉर दैट कि भाई अब क्या करूँगा, क्या हो गया. एंड ऑल्सो फ्लाइंग के बीच में भी आपको इतनी पेशेंस दिखानी पड़ती है यार. आप ये देख लो, आपकी फ्लाइंग बहुत अच्छी चल रही है, 3-4 महीने आपकी कंटिन्यू फ्लाइंग होगी, आपका सोलो हो गया, एंड आफ्टर दैट वेदर ख़राब. अब इस चीज़ में मुझे पेशेंस दिखाना है, मुझे 1-2 महीने प्रॉपर वेट करना पड़ेगा कि जब वेदर अच्छा होगा मेरी फ्लाइंग होगी, देन आई विल गेट माई PPL. आफ्टर PPL आई क्लियर माई CPL एग्जाम्स, आई विल डू हायर एंड फ्लाई, आई विल कंप्लीट माई CPL. देन आफ्टर दैट आपको कन्वर्जन करनी है. कन्वर्जन फ्लाइंग के लिए भी स्लॉट्स चाहिए होते हैं, एंड स्लॉट्स के लिए भी आपको वेट करना पड़ सकता है, उसमें भी आपको पेशेंस दिखानी है. देन आपकी कन्वर्जन होगी, आपके पास इंडियन कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी आ गया. चलो ये भी देख लो, आपके पास लाइसेंस भी आ गया. वैकेंसी के लिए बच्चों को भाई 8-8, 9-9 महीने वेट करना पड़ता है. अब 8-8, 9 महीने वेट करने के लिए क्या होना चाहिए? पेशेंस. मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए पेशेंस के लिए. सो एविएशन डिमांड्स पेशेंस. एंड भाई यू शुड नॉट बी वेरी ईगोइस्टिक. आपके अंदर एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने देखा है कि भाई देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो अपने इंस्ट्रक्टर्स के बारे में बहुत ये सोचते हैं कि भाई वो हमें डांट रहे हैं, एंड दे आर लाइक कि वैसे हैं वैसे हैं. भाई मेरे हिसाब से अगर मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे डांट रहा है तो देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड दैट. अब भाई मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल डांट नहीं खाता अपने इंस्ट्रक्टर से, मैं बहुत ज़्यादा डांट खाता हूँ. और इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैं अगर किसी भी फ्लाइट में जा रहा हूँ
तो मैं उनसे कुछ सीख के आऊँ नया। ऐसा नहीं कि भाई मैं बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ, मेरी फ्लाइंग एकदम परफेक्ट है, मैं हर फ्लाइट एकदम बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, कभी भी नहीं होता। आप हर फ्लाइट से अगर कुछ सीख के आ रहे हो तो मतलब आपकी वो फ्लाइट बहुत अच्छी गई है। और आपका इंस्ट्रक्टर आपको अगर डांट रहा है तो मे बी कुछ बहुत बड़ा रीज़न होगा उसके लिए। आपके इंस्ट्रक्टर आपको कुछ डांट रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ के लिए डांट रहे होंगे वो। मुझे लगता है भाई आप चाहे कैप्टन भी बन जाओ, चाहे आप कमांडर भी बन जाओ, तब भी आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हो। फ्लाइंग के लिए अगर आप जा रहे हो, आपकी फ़्लाइट है नेक्स्ट डे, आपकी चाहे जितने बजे की भी फ़्लाइट है, एटलीस्ट 8 आवर्स का स्लीप तो होना ही होना चाहिए। सो यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। आई एग्री दैट फ्लाइट का कोई भी टाइम हो सकता है, सो योर शेड्यूल इज़ लाइक वेरी इरेगुलर, तो यू हैव टू मेंटेन दैट। आप आगे एयरलाइन में जाओगे, आपकी कभी फ्लाइट सुबह 4 बजे की है तो कभी आपकी रात को 9 बजे की है, मतलब देयर कैन बी एनी टाइम कि आपकी फ़्लाइट किसी भी टाइम पे हो सकती है। आपको एक स्लीप शेड्यूल अपना ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपकी 8 आवर्स की स्लीप तो कंप्लीट हो ही रही है। तो एक ये भी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी वेरी डाउन टू अर्थ, यू शुड नॉट बी इगोइस्टिक, आपके अंदर एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट यू शुड हैव to become a very good pilot. I hope that I have covered all the things in this video. अगर भाई कुछ रह गया होगा then I'll make a separate video on that. जितने भी doubts है, जितनी भी queries हैं भाई comment section में डाल दो, मैं सब देखूंगा, मैं सब आपके doubts clear करने के लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे। और अगर कुछ वीडियो में रह गया होगा, कुछ टॉपिक रह गया तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई विल डेफिनेटली कवर देम इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल जस्ट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन मेकिंग वीडियोस और होप करता हूँ गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। बाय बाय, टेक केयर।